Hello my dear students, welcome back to a video lecture series on AMVI Men's Examination, a complete guide. So we are dealing with section A, module number 4, that is hydraulics. So in the earlier lecture we have covered the fluid concept, then the properties of the fluids, then classification of the fluids, then we have started with the fluid statics. In that we have covered Pascal's law, hydrostatics law, okay, then the pressure measurement, okay. In that we have covered the absolute pressure, what is mean by atmospheric pressure, what is mean by gauge pressure, and the relation between them. In this lecture we are going to cover the pressure measurement devices. So welcome to lecture number 11. So at the end of this lecture, you are able to answer the following type of the questions. Inclined single tube manometer is used for measurement of the dash pressure. So small, medium, high, none of these. Question 2, for manometer with the open end dash. So options are P gauge is equal to 0, P atmospheric is equal to 0, P absolute is equal to 0, none of these. Question number 3, for measuring the pressure between 2 points, dash is used U-tube manometers, piezometers, differential U-tube manometers, both A and B. Question number 4, piezometer measures dash pressure only, absolute, gauge, atmospheric, all of these. So answer to these questions will be discussed at the end of this lecture. So measurement of the pressure. The pressure of a fluid is measured by the following devices. Number 1, manometers. So manometers are defined as the devices used for measuring the pressure at a point in a fluid by balancing the column of the fluid by the same or another column of the fluid. They are classified as simple manometers and differential manometers. Coming to next, mechanical gauges. Mechanical gauges are defined as the devices used for measuring the pressure by balancing the fluid column by this spring or dead weight. The commonly used mechanical pressure gauges are Bourdon tube pressure gauge, diaphragm pressure gauge, bellow pressure gauge, dead weight pressure gauge. So what is the basic difference between manometer and mechanical gauges? In the manometer, the pressure at a point in a fluid will be balanced by the column of a fluid by same or another column of the fluid. But in the mechanical gauges, the balancing of the fluid column will be done by spring or dead weight. Okay, so this is the basic difference between manometers and the mechanical gauges. What is meant by a simple manometer? Simple manometer consists of a glass tube having one of its end connected to a point where the pressure is to be measured, and the other end remains open to the atmosphere. Okay, common types are piezometers, U-tube manometers. So in this you can see the piezometer, which is a type of the manometer, okay, which are the devices that employ the liquid columns to determine the differences in the pressure. तो यहाँ पे जो भी pressure determine होता है, जो भी pressure का difference determine होता है, that is with the help of the liquid columns. So these are used above the gauge pressure, means for measuring the positive pressure only. Glass tube is connected to the container. In this you can see the piezometer. One glass tube is there which is connected to a container. So liquid column will rise until the equilibrium is reached. What are the limitations of the piezometer? It is not suitable for negative gauge pressure, that is vacuum pressure. Okay, as we have said that it is only used above the gauge pressure, that is to measure positive pressure only. So obviously it is not suitable for a negative gauge pressure or vacuum pressure.
and it is not suitable for very large pressure also, because to measure a very large pressure we require a very long tube. Okay, so that is the second limitation. So we know that pressure will decrease with the elevation, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर वहां पे कम होता है. ओके, सो मैनोमीटर ओपन एंड जब रहता है देन प्रेशर जो भी गेज प्रेशर रहता है दैट इज ऑलवेज जीरो. ओके, क्योंकि अगर ओपन एंड है मतलब दैट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, सो वॉट एवर प्रेशर इज देयर दैट इज बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो पी गेज यहाँ पे जीरो रहेगा. एंड वॉट एवर प्रेशर we are calculating, okay, or differences in the pressure we are calculating in terms of the liquid columns. Okay, H के terms में हम calculate करेंगे. So it is HA minus H into S. Okay, A point का calculate करना है, so it is HA. Okay, why minus? Because from the reference line we are going upward direction. Okay, so ऊपर ऊपर जाते जाते pressure कम होता है, इसलिए यहाँ पे आया है ये निगेटिव. ओके, और बचा क्या यहाँ पे, ये सेम फ्लूइड का लिक्विड कॉलम है यहाँ पे. सो इट इज H इंटू द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू 0. ओके, सो दिस इज द बैलेंसिंग. सो यूनिट लेंथ ऑफ द फ्लूइड कॉलम इज जनरली वाटर, सो यूनिट विल बी either mm और सेंटीमीटर. मीटर वोंट बी देयर बिकॉज मीटर बहुत बड़ा होता है और हमने यहाँ पे लिमिटेशन में लिखा है कि इट इज नॉट सुटेबल फॉर मेजरिंग द वेरी लार्ज प्रेशर. अगर यही प्रेशर हमको पी के टर्म्स में चाहिए, प्रेशर के टर्म्स में चाहिए, दिस इज नाउ इन टर्म्स ऑफ द लिक्विड कॉलम्स, उसके हेड के इसमें. ओके, लेकिन अगर हमें यही प्रेशर के टर्म्स में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है S, that is the specific gravity. Specific gravity is nothing but the density of the given fluid divided by density of the standard fluid, that is the water. तो देखिए हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पे HE को HE वैसे ही रखने दिया, माइनस वैसे ही रखा, H वैसे ही रखा, सिर्फ जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसको हमने रो L बाय रो लिखा, that is the from its definition. और G जो कांस्टेंट है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई किया. ओके, सो यहाँ पे इक्वेशन में कुछ चेंज नहीं आया और इज इक्वल टू 0, बैलेंसिंग के लिए वैसे ही रखा है. ओके, अगर हमने यहाँ पे एलसीएम लेके मैथमेटिकल ऑपरेशन किया तो यहाँ पे ऐसा आएगा रो जी एच ए माइनस एच रो एल जी डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय रो जी इज इक्वल टू 0. अभी रो जी को राइट साइड में लेके जाओ, 0 से मल्टीप्लाई करो. ओके, सो अपने को ये आंसर मिलेगा रो जी एच ए minus rho L G H is equal to 0. So what is rho G H A? That is nothing but the pressure at A minus rho L G H is equal to 0. So pressure at A will become density of the liquid, given liquid, into gravitational acceleration into the height of the liquid column. Okay, and the unit will be Newton per meter square. So this is all about the piezometer. Now moving to simple manometer, U-tube manometer. So here you can see that one container is there to which a U-tube manometer is connected. Okay, और यहाँ पे अलग अलग differences height दिखा है. यहाँ पे एक fluid के लिए H1 है. Okay, उसके बाद दूसरे fluid के लिए H2 है. उन्होंने टोटल हाइट दिया. तो हमको अभी ये बैलेंसिंग करना पड़ेगा. मतलब यहाँ पे देखिए एक जो फ्लूइड है, ओके, उसका बैलेंसिंग हमको दूसरे फ्लूइड से करना पड़ रहा है. ओके, सो हियर अगेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द प्रेशर इन टर्म्स ऑफ द हेड्स. सो पहले हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस लेते हैं. रेफरेंस क्यों लेना है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस लेना है. ओके, जिसके ऊपर हमको प्रेशर कैलकुलेट करना है. क्यों ऊपर, क्योंकि देखिए ये जो रेफरेंस लाइन दिख रहा है आपको ए, ओके, उसके ऊपर प्रेशर डिफरेंसेस है, लेकिन उसके जो नीचे है वो सेम फ्लूइड है. यहाँ पे पूरा का पूरा सेम फ्लूइड है. तो हम क्या कर सकते हैं
कि यहाँ से स्टार्ट करते करते यहाँ तक आएंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जंप हो जाएंगे, बिकॉज इसमें जो भी प्रेशर है वो बैलेंस ऑटोमेटिकली हो रहा है। सो डायरेक्टली इस पॉइंट से इस पॉइंट में हम आएंगे और उसके आगे हम कैलकुलेशन करते जाएंगे। तो ये एक मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, इसको हमने रेफरेंस लाइन कंसिडर किया है। रेफरेंस लाइन कंसिडर करने के बाद ये हो गया लेफ्ट लिम, ये हो गया हमारा राइट लिम। ओके, तो आपको लेफ्ट लिम प्रेशर इज इक्वल टू राइट लिम प्रेशर दिखाना है। ओके, ये दूसरा मेथड हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे जो भी है पहले मेथड से, जंप मेथड से, जंप मेथड मतलब एच ए, ओके, एच ए, यहाँ से हम नीचे आएंगे, दैट इज नीचे आ रहे मतलब पॉजिटिव। कितना है इसका हाइट h1 और उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है s1। ओके, चलो ठीक है, यहाँ से अभी जंप करना है क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड सेम है तो प्रेशर सेम रहेगा जब तक वो हॉरिजॉन्टल सरफेस है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो ये पूरा का पूरा ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। ओके, तो ए लाइन के ऊपर जा रहे हैं अभी। सो वी आर गोइंग अबोव द ए लाइन। तो ऑब्वियस है ये कंसिडर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें टोटल हाइट दिया है सेकेंड फ्लूइड का, दैट इज h2, लेकिन हम ऊपर जा रहे हैं सो माइनस लेना पड़ेगा। सो माइनस h2 इंटू s2 इज इक्वल टू 0 फॉर द बैलेंसिंग। ये हो गया मेथड 1, जंपिंग मेथड। अभी हमें क्या करना है सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में क्या करना है, ये रेफरेंस लाइन है, अभी रेफरेंस लाइन के इसमें लेफ्ट लिम की जो भी कैलकुलेशन है दैट इज इक्वल टू राइट लिम। ओके, लेकिन इसमें क्या करना है, रेफरेंस लाइन की तरफ आना है। इसमें क्या करना है, हमें रेफरेंस लाइन के तरफ आना है। तो ये देखिए पहला आया एच ए का एच ए, ओके, और यहां से हम नीचे आए h1 इंटू s1 इज इक्वल टू इस पॉइंट से हमको रेफरेंस लाइन के तरफ आना है। तो ऑब्वियस है पॉजिटिव आ रहा है, नीचे आ रही है तो h2 इंटू s2। ओके, दिस इज सेकेंड लाइन। तो यहाँ पे हमने दो मेथड सीखा है, एक है जंप मेथड, ओके, और दूसरा है रेफरेंस लाइन कंसीडर करके एक लेफ्ट लिम और एक राइट लिम कंसीडर करके हमको करना है। ये और क्लियर हो जाएगा व्हेन वी विल सी द डिफरेंशियल मैनोमीटर। डिफरेंशियल मैनोमीटर्स दे आर यूज्ड टू मेजर द डिफरेंस इन द प्रेशर बिटवीन द 2 पॉइंट्स और 2 लोकेशंस। तो कैसे, यहाँ पे देखिए एक ये इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर यहाँ पे दिखा है। वी हैव टू मेजर दी डिफरेंसेस इन द प्रेशर बिटवीन ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। तो यहाँ पे दो अलग अलग पॉइंट दिए है, ओके, उनमें हमें डिफरेंस इन प्रेशर निकालना है। तो ओके, तो पहला मेथड क्या है, पहला मेथड हमको पहले रेफरेंस ढूंढना है और रेफरेंस ढूंढने के बाद एक लिम से चालू करना है और आगे जहाँ जिस पॉइंट तक हमें मेजर करना है उस पॉइंट तक जाएंगे, इज इक्वल टू वो पॉइंट का प्रेशर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो पहले हमें रेफरेंस लाइन ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे। ये देखिए हमारा ये है रेफरेंस। क्यों रेफरेंस यहाँ पे लिया हमने, ओके, यहाँ पे क्यों नहीं लिया, अगर यहाँ पे लेते हैं, ओके, तो यहाँ पे फ्लूइड्स ठीक है यहाँ पे, लेकिन यहाँ से दूसरा फ्लूइड आता है तो यहाँ पे ये बैलेंस नहीं होगा। ओके, सो ए पॉइंट बी पॉइंट तो कंसीडर करना है हमको, मतलब मेजर करना है, इसलिए यहाँ पे भी नहीं देख सकते। तो बचा क्या, ये देखिए यहाँ पे अगर ए पे हमने रेफरेंस कंसीडर किया है तो ये देखिए इस पॉइंट के बाद सेम फ्लूइड है इस पॉइंट तक, तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस बना। तो ऑब्वियस है ये इस पे जितना प्रेशर है उतना ही प्रेशर इस पॉइंट पे, ओके, ये तो ये ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। तो हम अभी ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ओके, बी पॉइंट तक जाते हैं और इज इक्वल टू बी का जो भी हेड कॉलम में वो बना देते हैं फॉर द इक्विलिब्रियम। ये मेथड 1 हो गया। मेथड 2 हम बाद में सीखेंगे। ये देखिए तो स्टार्ट किया हमने ए पॉइंट से, सो इट इज एच ए, ऑब्वियस है अभी हम रेफरेंस लाइन की तरफ जा रहे तो ऊपर जा रहे तो निगेटिव हो जाएगा। तो पहला कौन सा है कॉलम, दैट इज h1, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी s1, सो हियर माइनस h1 इंटू s1। ओके, तो दूसरा फिर से रेफरेंस लाइन की तरफ जा रही है, दूसरा फ्लूइड है हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी s2, ओके, और उसका हाइट कितना है h2 और ऊपर जा रहे हैं इसलिए माइनस, हियर माइनस h2 इंटू s2। तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस लिया हमने, रेफरेंस सरफेस या डेटम सरफेस बोल सकते हैं। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने जंप किया,
ओके, जंप करने के बाद हम अभी बी की तरफ जा रहे हैं, तो रेफरेंस लाइन के नीचे जा रहे हैं, तो ऑब्वियस है ओके, जब नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, तो हम नीचे जा रहे हैं, तो नीचे जाने के बाद यहाँ पे आएगा प्लस H3 इंटू S3 ओके इज इक्वल टू द हेड B HB ओके। अगर दूसरे मेथड से लिया, दूसरे मेथड मतलब लेफ्ट लिम्ब का जो भी प्रेशर है दैट इज इक्वल टू राइट लिम्ब प्रेशर। तो अगेन ये रेफरेंस लाइन हमने कंसीडर किया, ए रेफरेंस लाइन कंसीडर किया, तो इसमें ये लेफ्ट हो गया, इसमें ये राइट लिम्ब हो गया। तो जो भी प्रेशर है हमको यहाँ पे मेजर करना है। तो ये देखिए यहाँ पे HA ओके, माइनस माइनस क्यों, हम ऊपर जा रहे हैं रेफरेंस लाइन की तरफ ओके। तो यहाँ पे H1 इंटू S1 माइनस H2 इंटू S2 ओके। अभी राइट लिम्ब में जाना है क्योंकि ये सेकेंड मेथड है, तो हमको जंप नहीं करना है, राइट लिम्ब में जाना है। जो भी रेफरेंस लाइन है वहां तक तो सेम है, राइट लिम्ब में जाना है। फिर प्रेशर कितना है यहाँ पे HB और फिर हम ऊपर जा रहे हैं ओके टुवर्ड्स द रेफरेंस लाइन। सो इट इज माइनस H3 इंटू S3। ये देखिए ये दोनों भी इक्वेशन सेम ही है, ये दोनों भी इक्वेशन सेम ही है। सो फ्रॉम दिस यू कैन कैलकुलेट HA माइनस HB। हाउ, HB को इस तरफ लाइए और बाकी टर्म्स इस तरफ लेके जाइए, तो क्या बनेगा यहाँ पे HA माइनस HB इज इक्वल टू H1 S1 प्लस H2 S2 माइनस H3 S3 ओके, दैट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। अगर हमने डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर कंसिडर किया है यहाँ पे, तो देखिए फिर से हमको रेफरेंस लेना पड़ेगा, तो रेफरेंस यहाँ पे आएगा AA ओके। सो वी हैव टू फाइंड द प्रेशर बिटवीन A एंड B ओके। तो पहला जंप मेथड यूज करते, एक रेफरेंस लाइन कंसिडर किया, तो B पॉइंट तक हम जाएंगे और इज इक्वल टू B पॉइंट का हेड दिखाएंगे ओके। तो यहाँ से स्टार्ट किया HA यहाँ से नीचे आए ओके, नीचे जा रहा है मतलब प्लस आएगा H1 इंटू S1। तो यहाँ पे रेफरेंस लाइन कंसिडर किया, तो ये यहाँ से यहाँ तक जंप किया ओके। अभी ऊपर जा रहे तो ऑब्वियस है डेटम लाइन से ऊपर जा रहे तो प्रेशर नेगेटिव आएगा। सो इट इज H2 इंटू H2 इंटू S2 ओके माइनस H3 इंटू S3 इज इक्वल टू HB। ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड प्रेशर इन द लेफ्ट लिम्ब इज इक्वल टू प्रेशर इन द राइट लिम्ब। ये देखिए ये अगेन यही रेफरेंस लाइन है, तो यहाँ से यहाँ तक प्रेशर लेना है और फिर B से स्टार्ट करना है, यहाँ से यहाँ तक प्रेशर लेना है। तो HA से स्टार्ट किया HA और इधर से नीचे आ रहे तो ऑब्वियस है प्लस H1 इंटू S1 इज इक्वल टू, अभी B से स्टार्ट किया HB और HB से हम नीचे आ रहे ओके। सो इट इज H3 इंटू S3 पॉजिटिव और H2 इंटू S2 पॉजिटिव। ये देखिए HB प्लस H2 S2 प्लस H3 S3 ओके। तो दोनों भी मेथड से आप कर सकते हो, तो दोनों भी सिंपल जाएगा। सो लास्ट वन इज इंक्लाइंड मैनोमीटर्स। इट इज यूज्ड टू मेजर द स्मॉल डिफरेंसेस इन द गैस प्रेशर ओके। तो ये देखिए एक कंटेनर है, यहाँ पे ग्लास ट्यूब इंक्लाइन लगा दिया ओके। So this is the angle theta okay. So from the geometry we can see that sin theta is equal to H upon this R, opposite side upon the hypotenuse. So what is H? H will become R sin theta okay. So inclined tube requires greater displacement of the meniscus for the given pressure difference. So here H is equal to R sin theta from the geometry. So this is about the inclined manometers. So what are the key points about the inclined manometers? For the measurement of small pressure, it is used to measure the small pressure and it is having the better accuracy. So we will take two examples. Example number 1.
Determine the pressure difference between PA and PB. One simple U-tube differential manometer is given. So A and B का हमें pressure difference calculate करना है. Okay. A की जगह पे water है. Okay. उसके heights दिए हुए. उसके बाद दूसरा एक फ्लूइड है मर्क्यूरी और तीसरा एक फ्लूइड है ऑयल. तो सबके रिलेटिव डेंसिटी हमको पता होना चाहिए या उन्होंने दिया है. यस, दे आर गिवन दैट फॉर ऑयल रिलेटिव डेंसिटी is 0.8, mercury it is 13.55 and water obviously it is 1. So कैसे सॉल्व करना है? अगेन अप्लाई द मेथड. हमको पहले रेफरेंस लाइन लेना है. तो रेफरेंस लाइन कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे बनेगा रेफरेंस लाइन. अभी यहाँ पे मैंने मार्क्स नहीं किया है लेकिन अभी आपको समझ में आएगा. तो दिस इज योर रेफरेंस लाइन. क्यों? क्योंकि देखिए रेफरेंस लाइन के नीचे सेम फ्लूइड होना चाहिए. ओके. और उसका प्रेशर बैलेंस होना चाहिए. ओके. तो यहाँ पे हम रेफरेंस लाइन कंसिडर नहीं कर सकते. क्यों कंसिडर नहीं कर सकते? इसके नीचे अगर जाओगे तो यहाँ पे अलग फ्लूइड है, यहाँ पे अलग फ्लूइड है. ओके. सो द रेफरेंस लाइन विल फॉर्म हियर. ओके. ये वाला आपका रेफरेंस लाइन बन जाएगा. ओके. सो नाउ वी विल अप्लाई दी, जो भी हमने अभी सीखा है वो अप्लाई करेंगे. सो एच ए रेफरेंस लाइन कहाँ पे? यहाँ पे. तो ऑब्वियस नीचे आते आते प्लस बनेगा. ओके. एच ए प्लस यहाँ पे कितना डिस्टेंस है? 0.75. देखिए उसके बाद भी सेम फ्लूइड है तो ये हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं 0.5. उसके बाद भी सेम फ्लूइड है 0.1 मीटर तक. ओके. तो ये तीनों का भी एडिशन हो गया. ओके. सो एच ए प्लस 0.75 प्लस 0.5 प्लस 0.1. अभी इसको भी स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ऑब्वियस है वाटर है इसलिए 1 है, इसलिए यहाँ पे वो मल्टीप्लाई नहीं किया तो भी चलेगा. ओके. दूसरा ये रेफरेंस लाइन है. ये रेफरेंस लाइन से अभी हम ऊपर जा रहे हैं. ऊपर मतलब रेफरेंस लाइन से ऊपर मतलब नेगेटिव बनेगा. कौन सा फ्लूइड है? मर्क्यूरी है. रिलेटिव डेंसिटी कितना है? 13.55. और उसका हाइट कितना है? ये देखिए इसका हाइट आपको यहाँ पे दिखेगा 0.1 मीटर. सो इट इज माइनस 0.1 इंटू 13.55. ओके. तो अभी फिर से ऊपर जा रहे, बी पॉइंट तक जाना है हमें. तो बी पॉइंट तक जाने तक कौन सा फ्लूइड चेंज हो रहा है? ओके. सो इट इज हैविंग अ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ 0.8 और इसका हाइट दिया है 0.5. सो वी आर मूविंग in the upward direction from the reference line, so it will become negative 0.5 into 0.8 is equal to HB. Okay. So we can calculate HA minus HB. HA minus HB will be equal to 0.405. Just mathematical calculation है. Okay. So HA minus HB is known, but we are interested in the pressure PA minus PB. तो obvious है हमको H पता है, हमको प्रेशर निकालना है. We know that pressure is equal to rho G into H. Okay. So just multiply with the standard rho G, that is water. So PA minus PB is equal to HA minus HB into rho G. अभी स्टैंडर्ड फ्लूइड से क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेसिफिक ग्रेविटीज यूज की है. ओके. अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी वहां से अगर हटा देते तो वो क्या होता? Density of that given fluid divided by the density of the water. अगर दोनों को भी G से मल्टीप्लाई करते तो वो हो जाता हमारा स्पेसिफिक वेट. तो यहाँ पे वही है HA minus HB into rho G. Rho G is 9810 for the water. So after calculating we get the answer as PA minus PB is equal to 3.973 kilonewton per meter square. Okay. 3.973 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो ये देखिए इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 3973 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके. तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आंसर आ रहा है तो हमको उसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना है. तो हमने ये ऐसा किया 3.973 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके. क्योंकि 1 किलो न्यूटन कितना होता है? दैट इज 1000 न्यूटन. सो second, determine the pressure difference between PA and PB. So we have to calculate PA minus PB. So inclined tube manometer is given. Okay. So here
air is given, so we can neglect the specific weight of the air. Okay, तो यहाँ से जो भी उसका हाइट है इंटू जो भी स्पेसिफिक वेट बनेगा वो ऑलमोस्ट हम जीरो कंसिडर करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं. तो इक्वेशन ऐसे बनेगा, neglecting the weight of the air column. So PA ओके. अभी रेफरेंस लाइन यहाँ ओके, रेफरेंस लाइन के ऊपर जा रहे हैं, सो इट इज 0.020 sin theta. Okay, this is R. We are interested in H. So what is H from the inclined tube manometer? H is equal to R sin theta. So R को 20 mm दिया है. Okay, so we have to convert that mm into meters. So it is 0.020. Okay, so what is H? 0.020 sin theta into its specific gravity 0.8 into its specific weight, because here we have written pressure, not the head. Okay, that's why we have to multiply with the standard fluid specific weight, that is the water specific weight 9810. So it will give PB. So PA minus PB will give 78.3 Newton per meter square. 78.3 Newton per meter square is the pressure difference between A and B. So we are at the end of this lecture. So we will answer this question. Inclined single tube manometer is useful for the measurement of dash pressure. Okay, so we have seen that inclined single tube manometer जो भी रहता है वो छोटा प्रेशर मेजर करने के लिए यूज होता है. सो इट इज आंसर इज स्मॉल. फॉर मैनोमीटर विथ द ओपन एंड ऑप्शंस Pg is equal to 0, P atmospheric is equal to 0, P absolute is equal to 0, none of these. So answer is Pg is equal to 0. Why? Because open end है, मतलब वहां पे जो भी प्रेशर दिखा रहा है that is atmospheric pressure. Okay, so question 3, for measuring the pressure between 2 points dash is used U-tube manometer, piezometer, differential U-tube manometer, both A and B. U-tube manometer हो सकता था लेकिन वहां पे डिफरेंस नहीं पता चल जाता है, दो पॉइंट्स में चाहिए डिफरेंस, सो इट इज differential U-tube manometer, option C. Then last question, piezometer measures dash pressure only. Okay, piezometer always measures the positive pressure, that is the gauge pressure. Okay, so piezometer measures gauge pressure only. So option is the B option is the correct answer. So if you like the lecture, please like, share our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. So we will meet in the next lecture with the new topic. Till then, study for your RTO exam. Thank you very much.